Good morning everyone. Very warm welcome to yet another very interesting and very important session. आज हम बात करने वाले हैं CLAT करंट अफेयर्स की और important articles dated this month and the previous months which are in a higher probability to be asked in the upcoming examination. तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को with the whole enthusiasm and the zeal. We are making sure that we are not only learning but we are also revising at the same time, so this class will also have a provision of the recap at the end of it, right? Good morning to everyone who has joined this session. Subhangi, Prachi and every one of you is cordially very warm welcome to this class. Myself Jagdish Chandra Jangid, I'm a plus verified educator and I'm also having the honors of making sure that you learn the general knowledge and current affairs in a very lucid manner for all of the journalistics examinations, all of the upcoming law entrance examinations, be it the CLAT, MSCET, BLAT, or be it the DU examinations. So let's start the quest of the journey. Before starting any of the classes, we always give the thanks and due credit to all of the journalistic sources, offline and online, print and digital, and we are having a disclaimer for the same, sir and ma'am. I hope that you know that there are around 39 questions to be asked in your CLAT examinations out of the 150 questions, right? So यहाँ पे आपके पास में लगभग 25 to 30% का जो है पोर्शन जो है वो सेगमेंट है वह कवर किया जाने वाला है करंट अफेयर्स के सेगमेंट के द्वारा. सो वी आर मेकिंग श्योर दैट यू हैव आल्सो एनालाइज द past year paper which we have also dealt in the previous classes, right? The newspaper analysis is a very important thing. That's what we are providing over here as well, and at the same time I'm giving you the MCQ practice questions, right? So let's start the class. इस क्लास के अंदर अगर आपको ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर है, सो जल्दी से मेरे को कोई भी एक स्टूडेंट थम्स अप करके बता देगा सर ऑडियो एंड वीडियो बहुत क्लियर. एनी ऑफ यू may please write it down, audio video clear, so that we move forward in the class, right? So there was an article recently. The article is having some significance as it holds India's, yes sir, all right, so it holds India's roots of the democracy at the international level, sir and ma'am. So here some of the authors at the Indian Express ka explained page, they have tried to write a very good piece of article. You can just Google this article as well. Please do read it, and I'm going to give you a brief analysis about the same. Why India's ancient republics need to be recognized for their place in the world history, sir. In times of the world history, when we read in the academics the world history, right, India is nowhere to be cited at the international level. Yes sir, that is an ultimate kind of what we say a truth, right? Why? Because India has been subjected to the earlier, like if we talk after the end of the medieval rule, it has been subjected to the many of the intruders who ruled India, and after that the Europeans came, invaded India, and as a British East India Company, later on they ruled here for the 200 and 250 years almost, and you can see that they have tried to make sure that there is no mark left of the India's history. And today what we read in name of the India is Mughal history, or what we read in name of India is a British Indian history, right sir? So we do not have exactly what is the idea of the ancient Indian history. So India की जो ancient republics है, right, the loktantra that India already had in the medieval and the ancient era is no more visible when we are reading the world history. And this fora, this public, they played at an international platform recently. Our Prime Minister Narendra Modi has struck a very important reality, right? Let's go through it. So while addressing the United Nations General Assembly, यहाँ पे United Nations General Assembly का एक अधिवेशन होता था, आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कहा है, he made an important historical point that India is not just world's largest democracy, but also mother of the democracy. So we are not only the largest democracy, largest in the sense that we are having the pluralistic sense, we are having the much diverse ethnicity, we are having the much diverse religions, we are having the much diverse a segment of the population, right? In sense of the numbers also, in sense of the diversity also, we are very unique, sir and ma'am. We are very unique. But at the same time, they are saying we are not only the biggest, but we are also the oldest. It means to say that India, since the ancient time, is propagating the principles and the ideologies of the democracy. So there is evidence of existence of the proto form of democracy and the republicanism in the ancient India. So Narendra Modi, in his statement in the General Assembly, said that India is not only the biggest but also the oldest democracy since ancient time. We are having the many form of the democracy which is practiced in India, many form of the republics that is practiced in ancient India. So let us try to show some light on this.
You must be knowing some of the kingdoms that were around the 300 to the 600 BCE, before Common Era. If you talk of the before Common Era, you must be knowing the before the before the birth of the Jesus Christ, right? So we are living in the 2021 Anno Domini AD, right? 2021 AD it is today. So if I talk 2021 years ago, 2021 years ago, it was like the zero when the Jesus Christ took birth, and the era before that, the time period before this is known as the before Common Era or before Christ, right? So even the 300 years to 600 years before that. So we are talking almost around the 2300 to the 2600 year old टाइमलाइन, राइट सर? लगभग 2300 से 2600 हजार साल पहले हमारे भारत में क्या हुआ करती थी सर? कुछ किंगडम्स हुआ करते थे जिनको सर हम क्या बोलते थे? महाजनपद बोलते थे। क्या कहते थे सर? महाजनपद बोलते थे। तो पूरे भारत में सर यहाँ पे लगभग आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने सर? 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे ये कुरु है, गांधार है, कंबोज है ना, पांचाला, ये पांचाल वाला एरिया है आपके पास में, गंगा यमुना से ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे सूरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स, अस्मक, मगध, अंग, काशी, विदेही, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्ला है ना। दीज आर ऑल नथिंग बट द रिपब्लिक्स, दीज आर स्मॉल रिपब्लिक्स practicing the different form of the democracy. So Narendra Modi said that we already had practiced the democracy and we had the many form of the democracy since the ancient time period. We are not only the oldest but also the biggest democracy. So currently in the September 25th, अभी नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को न्यूयॉर्क में एड्रेस किया है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट्स बताते हुए कहा कि हम लार्जेस्ट ही नहीं बल्कि एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी, मतलब एंशिएंट डेमोक्रेसीज आर आल्सो सोर्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो दिस असर्शन वुड अनसेटल द सेवरल लॉन्ग हेल्ड वेस्टर्न नोशंस अबाउट आवर वर्ल्ड, है ना। तो काफी सारी चीजें इन्होंने बताई कि काफी अलग अलग तरह के जो है हमारे पास में डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म फॉलो किए जा रहे थे। ह्यूमैनिटीज कॉमन हेरिटेज एंड डिजर्व्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द शेयर्ड व्यूज ऑफ आवर पास्ट। मींस कुल मिला के यहाँ पे पॉइंट बनाया गया कि सर हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को भी यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो अभी नहीं मिली जा रही है। हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशिएंट लेवल पे तो यहाँ पे रोमन्स को पढ़ते हैं, हम यूरोपियंस कल्चर को पढ़ते हैं, अफ्रीकन कल्चर को, अमेरिकन कल्चर्स को पढ़ते हैं। बट डू वी ऑल्सो रीड अपार्ट फ्रॉम द वेदास एंड द वैदिक कल्चर, डू वी ऑल्सो हैव some place for the later Vedic and some place for the Vedant and some place for the medieval, right? We don't have it, sir. When we go in the international studies, we just have the idea of the India that has been formed after the invasion of the Mughals and that has been formed after the invasion of the English, right? So we do not have like the much histories of before that, because we know that history is written by those who win, and those who won, they made sure that there is nothing that has been concurrent and that has been coherent with the consistent with the more than the 1000 year old. तो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 500-600 साल का एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, उससे पहले का जो भी हिस्ट्री है, जो भी चीजें थी, चाहे शिलालेख हो, चाहे आर्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे राइटिंग फॉर्मेट में हो, मैक्सिममली जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, सो दैट इट डजंट सर्वाइव, राइट? एंड इट बेसिकली डिड नॉट, एंड दैट इज व्हाई मोदी हैव टू बेसिकली रेज दिस पॉइंट इनटू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट? सो देयर आर द टू पिलर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। द फर्स्ट इज अ साइंस बेस्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज की तारीख में दुनिया के दो स्तंभ है, एक है विज्ञान, है ना, जो हमको यहाँ पे रैशनल थिंकिंग सिखाता है, और दूसरा है हमारा डेमोक्रेसी, साइंस एंड डेमोक्रेसी। ये दो इंपॉर्टेंट है ना। सो इट इज ऑल्सो टेलिंग दैट द बोथ आर ऑफन बिलीव टू बी द वेस्टर्न इन्वेंशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे विज्ञान की बात कर लो, चाहे डेमोक्रेसी की बात कर लो, दोनों ही सर वेस्टर्न, मतलब आपके पास में वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, यूएसए है ना, कि सर ये इनकी देन है हमारे पास में, रिफ्लेक्टिंग द वेस्टर्न एसेंट्री ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर पूरी दुनिया में इन्हीं के आइडियाज का यहाँ पे चलन चल रहा है। इज इट राइट? इज इट एनीवेयर राइट? क्वेश्चन मार्क सर, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर, अभी हाल ही में, देयर हैज बीन मूव टू रिकॉग्नाइज द एडवांसेस इन द साइंस मेड इन द पास्ट बाय द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। लाइक आपके पास में जैसे कि वेस्ट के अलावा, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा भी दूसरी कंट्रीज ने भी काफी अच्छे काम किए, जैसे कि पाइथागोरियन थ्योरम है आपके पास में, फॉर इंस्टांस, वाज वेल नोन इन द एंशिएंट इंडिया। इट वुड बी मोर हिस्टोरिकली एक्यूरेट टू रेफर टू द Fibonacci numbers, perhaps the Pingala's number, and at the same time Hemachandra's number, but also believe that the assumptions that goes with them is still strong, है ना। तो जो बाइडेन noted last year that
you don't they don't tell you how black man contributed to the making of the electric bulb. In the similar vein, it is the time to fix a historical record on the origin of the democracy as well. मतलब हम सभी को पता है कहीं ना कहीं से हिस्ट्री के साथ में छेड़छाड़ हुई है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि सर वहां पे अश्वेत लोगों का क्या योगदान रहा है, चाहे विज्ञान हो, चाहे वहां की राजनीति हो, चाहे वहां की डेमोक्रेसी हो, इट हैज बीन बेसिकली अनहर्ड, दे हैव बीन द अनसंग हीरोज, राइट। तो यहाँ पे वही चीज हमारे भारत के भी संदर्भ में कही जा रही है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यही चीज इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी कही जा रही है। दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू नो, अ वेरी बेसिक थिंग सर, राइट। दैट्स इट। इसको आर्टिकल को जरूर एक बार गूगल करना। दैट इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू। हाउ मेनी जनपदास वर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एट द सेम टाइम प्लीज डू रीड दिस आर्टिकल, राइट, द रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क नंबर 1. मेक श्योर दिस वाज इन द मंथ ऑफ द October. This is a very good read. There can be the good probability of the questions that may be asked from this. Subhangi, Shweta, Anadi, and every one of you is watching this live right now. We are moving forward, sir. We are moving forward. Here's the next question for you. Here's the next question for you. The question here belongs to the polity section, which has been discussed currently in the news as well. So let us understand this question. Consider the following statement. Which of the following statement is not correct? Focus here. Which of the following is incorrect actually, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में 3 स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है? 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान में, इट सेट्स द प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। क्या यहाँ पे डिफेक्शन मतलब दल बदल, एक आदमी कांग्रेस में होता है, कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन जीतता है, एंड आफ्टर दैट, राइट, डेट, यू डोंट नीड डेट अनादि, यू जस्ट गूगल दैट, just go that, google that and you will get it, ठीक है ना, you will definitely be getting it. तो इंडियन एक्सप्रेस का है ये आर्टिकल, एंड देन यू जस्ट गो एंड गूगल इट एंड यू विल बी गेटिंग इट। तो सर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का क्या मतलब, एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से जीत करके जब वो जीत जाता है तो जीतने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट में आने के बाद में वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इसको कहते हैं दल बदल करना, है ना। यू आर चेंजिंग योर ग्रुप, यू आर डिफेक्टिंग योर ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के अंदर बेसिकली वह प्रोविजंस, वह कानून रखे गए हैं जो बेसिकली कोई भी आदमी अगर डिफेक्ट कर जाता है, कोई भी इलेक्टेड मेंबर अगर अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिफेक्टेड मेंबर, क्या उसके बारे में है 10th शेड्यूल? यस, इट इज ऑल अबाउट इट, राइट। तो 10th शेड्यूल इज हैविंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है 10th शेड्यूल में? क्या है सर आपके पास में? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। इफ वी आर क्लियर ऑन दैट, वी मस्ट बी आल्सो नोइंग दैट द मेंबर्स disqualified under the anti-defection law are debarred from contesting election for the next 5 years. अगले 5 सालों तक सर ऐसे लोग जो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के अंदर बेसिकली जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है ना, जिनको यहाँ पे जिनकी योग्यता हटा दी जाती है, जिनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है, ऐसे लोगों को यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने से अगले 5 साल तक रोक दिया जाता है। आर दे बीन बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 years? इज इट गोइंग टू हैपन? इज इट गोइंग टू हैपन सर एंड मैम? So that's what also we are going to see. The defection by at least 1/3 of the elected member of the political party is considered the merger. अब ये कह रहा है कि सर अगर आपके पास में पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सर पॉलिटिकल पार्टी में 30 लोग है, कितने सर? 30 लोग है पार्लियामेंट में। एक सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 30 में से सर यहाँ पे एक 1/3 जो सेक्शन है ना, 1/3 मतलब यहाँ पे लगभग हो गए 10 नंबर। अगर ये 10 लोग हट करके कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मर्ज कर जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या यह एंटी डिफेक्शन कहलाएगा? क्या इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा? क्या यह दल बदल कहलाएगा? नहीं सर। अगर यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द मेंबर्स 1/3 एटलीस्ट है ना, एक तिहाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर, सपोज सर 30 यहाँ पे एमपी थे, 30 में से 10 एमपी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, सेम डे सेम नोट के ऊपर एक साथ में, तो उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लग सकता है, राइट। सो इट विल नॉट बी अप्लाई टू देम, यह याद रख लेना, ठीक है। सो एंटी डिफेक्शन जो है वो किनके ऊपर, क्योंकि यह मर्जर कहलाता है। यह क्या कहलाता है सर आपके पास में? इट विल बी कॉल्ड एज अ मर्जर, राइट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जल्दी से अपना आंसर देंगे सभी लोग। Everybody who is watching this live right now, give me your answer. Sir and ma'am, give me your answer. Yes sir. सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कोई भी ऐसा एमपी या एमएलए, एमपी होगा आपके पास में पार्लियामेंट में, एमएलए होगा आपका स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर।
है ना, जो यहाँ पे पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी यहाँ पे डिफेक्ट कर जाता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है ना, फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर, है ना। तो 10th शेड्यूल जो है इसको पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 के अंदर यहाँ पे जो है 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा जाता, राइट। It sets the provision for disqualification of elected members on the ground of defection to another political party, right? तो ये तो चीज क्लियर होगी कि अगर कोई भी यहाँ पे एमपी या एमएलए जीतने के बाद में आफ्टर विनिंग इलेक्शन पार्टी चेंज कर लेता है, तो सर उसको ऑल टुगेदर मेंबरशिप है उसकी, चाहे लोकसभा की चाहे विधानसभा की, वह खत्म कर दी जाएगी। इज दिस क्लियर? वेरी मच क्लियर सर। हाउएवर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। कुछ एमपीज और एमएलए जो हैं, अगर आपके पास में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं विदाउट इनवाइटिंग द पेनल्टी फॉर डिफेक्शन, ठीक है ना, आपके पास में अगर यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ द एमपी एंड एमपी और एमएलए टू ज्वाइन और मर्ज विद another political party without inviting penalty for defection, and it does not penalize the political party for encouraging and accepting defecting legislators, ठीक है ना सर। अगर आपके पास में यहाँ पे वो मर्ज कर जाते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मर्ज कर गई, है ना, जैसे पार्टी ए पार्टी बी दोनों मर्ज कर गई, है ना, दोनों मर्ज करके पार्टी सी बना लेती है, दैट्स ऑल, यू कैन नॉट बेसिकली डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट, दैट इज अ लीगल थिंग। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो 1985 के एंटी डिफेक्शन एक्ट में डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड द मर्जर। तो मर्जर का क्या मतलब हुआ, एक तिहाई कोई भी सदस्य जो है, जैसे 30 में से अगर 10 मेंबर 1/3 मेंबर अगर यहाँ पे हट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जा रहे हैं, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि एक आदमी के ऊपर लगा सकते हो, यहाँ पे 10 आदमी को अगर आप हटा दोगे ऑल टुगेदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे आपको वापस, है ना। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, वो चेंज करता है इसको, एंड नाउ इट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव टू बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर फॉर इट टू हैव द वैलिडिटी इन द आई ऑफ द लॉ। तो पहले तो था सर आपके पास में 1/3, उसके बाद में कर दिया जाता है इसको 2003 में 2/3। तो आज की तारीख में क्या बोला गया कि सर जो शुरुआत में आपके 30 में से अगर यहाँ पे 10 मेंबर भी अगर यहाँ पे जाना चाहते थे, ओनली द 1/3 मेंबर, देन ऑल्सो इट वाज अलाउड। और बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास में 2/3 मतलब 1/3 और 1/3 और चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 से नहीं 20 से काम चलेगा। तो आपका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या कहता है अनादि, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इट सेज दैट अगर आपके पास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एक सेक्शन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करना चाहता है, तो कम से कम 2/3 लोग होने चाहिए। 2/3 मतलब आउट ऑफ 20 लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में विलय कर जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे, देन ओनली एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी अप्लाइड। अगर 2/3 से कम हुआ देन इट विल बी अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पे 1/3 को भी तोड़ना आसान लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी के लिए आपको यहाँ पे पता होगा हॉर्स ट्रेडिंग नाम की एक टर्म्स होनी होगी, है ना, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि सर जैसे ही इलेक्शन होते हैं वो अपने नंबर्स को अचीव करने के लिए, जो स्ट्रेटेजिक नंबर होता है मेजोरिटी का 50+1, उस नंबर को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद यूज करने की कोशिश करते हैं, और कई बार यहाँ पे लोगों को कुछ तरीके से पैसों से, कुछ बल से, कुछ और तत्वों से बेसिकली उनको प्रेशराइज किया जाता है, दे बेसिकली डिफेक्ट। और डिफेक्शन इतना था सर कि 1/3, पहले तो हमने 1985 में ये कानून बनाया कि सर 1/3 लोग अगर जाएंगे, जो कि मुश्किल था अपने आप में, पर यहाँ पे क्या होने लगता है कि 1985 से 2003 के बीच में 1/3 लोग भी यहाँ पे डिफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऑल टुगेदर पार्टी का 1/3 यहाँ से जाना शुरू कर देता है। तो सर एक चीज तो और भी क्लियर हो गई सर, आपके पास में इतना बड़ा डिफेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट को और बढ़ाओ। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आती है 2003 के अंदर, है ना, ऑब्वियसली यूपीए थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कहती है कि नो मिनिमम 2/3, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर यहाँ पे लोगों को छोड़ के जाना है तो कम से कम 2/3 लोग एक साथ छोड़ के जाएंगे, तो वो बेसिकली लीगल होगा इन द आईज ऑफ द लॉ। अदरवाइज बेसिकली क्या होगा, वो इट विल इनवाइट द एंटी डिफेक्शन पेनल्टी, है ना। तो पेनल्टी क्या लगेगी, डिस्क्वालिफिकेशन, सब मेंबर्स को बोलेंगे आप घर जाओ, ठीक है। तो याद रखना, द मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ सीट ऑफ द सेम हाउस, ठीक है ना सर। जिसको भी आपने डिस्क्वालीफाई किया है यहाँ पे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वापस इलेक्शन पे खड़ा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर 4 साल 5 साल 6 साल तक वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। वो चीजें किस पे लगती हैं, जो किसी भी आदमी के ऊपर कोई कोर्ट में ट्रायल चला है और कोर्ट में वो कन्विक्ट है,
तो कोई भी यहाँ पे एमपी या एमएलए कोर्ट में कन्विक्ट होने के 6 साल तक, उसके बाद में 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। सर जनरली एक पॉलिटिकल कोई भी इलेक्शन लड़ा जाता है तो सीट का वैल्यू होता है 5 साल के। 6 साल का मतलब हो गया सर 2 इलेक्शन, वो अगले 2 इलेक्शन तक घर बैठा जाएगा। 2 इलेक्शन का मतलब हो गया ऑल टुगेदर उसकी पॉलिटिकल लाइफ जो है, पॉलिटिकल कैरियर जो है, अगले 10 साल तक शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 10 साल तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे खड़ा होकर के देख पाएगा। और सर जो आदमी पॉलिटिक्स में 10 साल घर बैठ गया, 10 साल छोड़ो 1 साल घर बैठ गया ना, वो बेसिकली बैठ ही गया फिर, है ना। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे 5 साल तक। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आर वी क्लियर? एंटी डिफेक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको क्लास को अच्छे से सुनना है। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्शन को रोकना है, डिफेक्शन को रोकना। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाना। जैसे सपोज पर्सन ए पहले था आपके पास में आम आदमी पार्टी पे, है ना, फिर वो चला जाता है बीजेपी के अंदर, ठीक है ना। जीतने के बाद में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी की टिकट पे, फिर जीतने के बाद में बीजेपी में चला जाता है। या फिर यहाँ पे एक पर्सन है बी जो बेसिकली बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता भी है मोदी जी के नाम पे, और फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद में। तो यह दल बदल कहलाता है। और सन 1970s में, 1980s के अंदर, 1970 और 80 के दशक में यह चीज बहुत होने लग गई थी। यह चीज बहुत होने लग गई थी कि आप जीते तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से हो, और आपको बेसिकली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फिर थोड़ा सा लाभ दे करके क्या अपनी तरफ खींच लेती थी अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए। तो इसको दल बदल बोला जाता है। क्या बोला आपने, दल को बदल लिया, यू चेंज योर पार्टी, है ना। इसको रोकने की कोशिश करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया, 10वां अनुसूची 10th शेड्यूल ऐड किया गया, और 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को डाला गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपने यहाँ पे जीतने के बाद में, जीतने से पहले भले पॉलिटिकल पार्टी चेंज करो ना, आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो, आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं की, बीजेपी से खड़े हो जाओ, बीजेपी ने नहीं दी, आम आदमी पार्टी से खड़े हो जाओ, वहां से नहीं है तो खुद का इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता को आपने क्या भरोसा दिया कि मैं पर्टिकुलर विचारधारा, पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर मैंडेट के साथ हूं, यह चीज बोली, और उसके बाद में आप एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पार्टी के साथ में जुड़ जाते हो, तो ये तो जनता के साथ धोखा ही हुआ ना एक तरह का। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, जब तक 1/3 लोग एक साथ नहीं जाएंगे तब तक हर आदमी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होगा। 1/3 लोग एक साथ जा रहे हैं तब तक ठीक है ना। फिर 2003 में इसको भी बदला गया। 2003 में एक और अमेंडमेंट लाया जाता है 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ में। और क्या किया जाता है सर, अब यहाँ पे अगर आपको डिफेक्ट करना है, दल बदल करना है, तो मिनिमम 2/3 यहाँ पे आदमी साथ में होने चाहिए। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3। सोचो सर, इस पॉलिटिकल पार्टी के, ये आपके पास में कांग्रेस है, तो कांग्रेस से कोई यहाँ पे बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस के 30 एमपी है, तो 30 में से अगर 20 एमपी, मतलब 2/3 मिनिमम होना चाहिए, 2/3 66%, है ना। तो 2/3 अगर यहाँ पे साथ में होगा, देन ओनली इट विल नॉट अलाउ एनी पेनल्टी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो मर्जर नहीं कहलाएगा, एंड दिस विल इनवाइट डिस्क्वालिफिकेशन। इन सबको क्या कर देंगे हम, अनादि डिस्क्वालीफाई करेंगे। आर वी क्लियर मिस्टर हर्ष? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दैट? Sir and ma'am, ladies and gentlemen, are we clear on anti-defection? Right? So यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। The members disqualified under law can stand the election from any political party for a seat of same house. The decision on the question of disqualification on ground of defection refer to the chairman or speaker of such house, which is subjected to the जुडिशियल रिव्यू। तो सर ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा किस आदमी को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है, ये डिसाइड करेगा। जैसे सर राज्यसभा का एमपी यहाँ पे दल बदल कर रहा है, तो राज्यसभा का चेयरमैन, है ना, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, बाय डिफॉल्ट वो होता है, तो वह कॉल लेगा, उसके हाथ में पावर होगी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उस आदमी को, उस एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की। अगर लोकसभा का एमपी है तो लोकसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पे स्पीकर ऑफ द हाउस, है ना, लोकसभा का स्पीकर, तो वह फाइनल कॉल लेगा, शुड आई डिस्क्वालीफाई हिम, क्या उसको डिस्क्वालीफाई करूं या नहीं करूं। Getting it? So they are the people who will be taking the final call. शुरुआत में ये था कि एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई कर दिया तो इट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आते हैं कई, और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, नथिंग is legally, technically, in words and spirit is beyond the judicial review. Judiciary can review every law that parliament make, every order that executive pass, every executive order that government makes. Getting it? So executive and legislatures, any action can be reviewed on the basis of the constitutionality or not. If it is consistent with constitution, it is okay, judiciary will uphold it. If it is not, judiciary will strike it down. Is it clear? So it is also under the purview of judicial review. यह पता होना चाहिए, right? So this is like Madhya Pradesh. What do you mean Madhya Pradesh? चलिए
आगे बढ़ते, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपके पास में 2 and 3 की यहाँ पे बात की जाती है सर, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे कह रहा है कि अगले 5 साल के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है सर। एंटी डिफेक्शन लॉ, एटलीस्ट 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी होंगे, तो नहीं सर, यहाँ पे 1/3 नहीं है, इट इज द 2/3, इट इज द 2/3। यह दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो 10 शेड्यूल जो है आपके पास में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, अगर डिफेक्शन कर जाते हैं कोई लोग तो बिल्कुल यह चीज सही है, याद रखेंगे। 1985 में आया था 10वां अनुसूची, है ना, और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 2003 में वापस अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि सर अगर मर्जर भी होना है तो वो 2/3 के मेजोरिटी के साथ में मर्जर होगा। आर वी क्लियर ऑन दैट? केस ऑफ द एंटी डिफेक्शन 2/3 कांग्रेस ज्वाइन द बीजेपी, हाँ दिस में हैपन, ठीक है ना। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द केसेस के जहां पे ये चीज हुई है, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन क्लियर है सबको? एंटी डिफेक्शन क्लियर है तो मेरे को एक थम्स अप दे दो, यस सर एंटी डिफेक्शन क्लियर, सो दैट आई मूव फॉरवर्ड, ऑलराइट सर। आगे हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फॉर द वी आर टॉकिंग ऑफ आवर नेबर पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कानून बनाया है कि हमारे एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो कुलभूषण जाधव है, इनको इन्होंने पकड़ रखा था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर यहाँ पे मुकदमा चलता है और यहाँ पे बोला जाता है कि कुलभूषण जाधव जो है इनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, इनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए पहली बार, और इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनको एक्सेस टू काउंसलर भी मिलनी चाहिए। तो अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इंटरनेशनल फोरा के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अपने कानूनों में बदलाव लेके आता है, ताकि यहाँ पे जो कुलभूषण जाधव है उनको यहाँ पे अनुमति मिल सके एक ट्रायल वापस अलाउ करने की, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स द इंडियाज पोजीशन। सो व्हाई इट वाज इनेक्टेड, ये कानून क्यों इनेक्ट किया, है ना। हैव द गाइडलाइंस रेज्ड डाउन बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बीन फुलफिल्ड, और क्या इस कानून को बनाने के लिए जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो गाइडलाइन दी, दिशा निर्देश दिए, क्या उनकी पालना की पाकिस्तान ने? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सर। द स्टोरी सो फार, यहाँ पे आपके पास में द स्टोरी सो फार में पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है आईसीजे का एक कानून लेके आती है। कानून का नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। तो क्यों यहाँ पे किया? क्योंकि इसके थ्रू जो हमारे कुलभूषण यादव जी है ना, इट विल ग्रांट द राइट टू अपील, तो यहाँ पे अपील करने का अधिकार दिया जाएगा कुलभूषण यादव को। कुलभूषण यादव कौन है? जो फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, है ना, और इनको यहाँ पे जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, डेथ रो दिया जा चुका है, कई और चार्जेस भी इनके ऊपर लगाए गए हैं पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर। क्या सर ये भारत के लिए जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान में, इनको आर्मी ने पकड़ा और इनके ऊपर ट्रायल चला और इनको जेल हो जाती है, इनको फांसी हो जाती है, पर इंडियन गवर्नमेंट इसी केस को लेकर चली जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत के फेवर में बोलता है कि बिल्कुल सर इनकी तो सुनवाई ही नहीं हुई, इनकी प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो कानून है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक बार किसी का ट्रायल खत्म होने के बाद में वो री अपील कर सके, है ना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के लिए एक नया कानून लाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू रिकंसिडरेशन बिल, ठीक है, कुलभूषण यादव को री अपील फाइल करवाने के लिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस मिसगिविंग्स अबाउट द लॉ सेइंग इट डज नॉट फुलफिल द टर्म्स लेड डाउन बाय द आईसीजे 2019 ruling which included the provision that India be allowed to consular access to the जाधव। तो यहाँ पे कहा कि सर जो आईसीजे ने कहा था उसके अनुसार यह कानून नहीं बना है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा था, सर इनके पास में काउंसलर एक्सेस होना चाहिए, काउंसलर का एक्सेस होना चाहिए। काउंसलर का एक्सेस क्या मतलब हुआ कि जो कुलभूषण जाधव है इनको इनकी चॉइस का अटॉर्नी वहां पे होना चाहिए, इनकी चॉइस का वकील इनको रिप्रेजेंट करे इनके कोर्ट के अंदर, तो यह चीज होनी चाहिए। जबकि अभी जो नया कानून आया इसमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं दी गई, इनको अभी तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है। When he was arrested, कब अरेस्ट किया गया? सर कुलभूषण यादव को 2016 मार्च में अरेस्ट किया गया था। इनके ऊपर यहाँ पे जासूसी का और सैबोटेज का अगेंस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, है ना, पाकिस्तान के जो भी सुरक्षा निकाय है उनके ऊपर जासूसी करने का इनके ऊपर आरोप लगा था, है ना। यहाँ पे बहुत ही इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है इस केस को। 2016 में यहाँ पे पठानकोट का टेरर स्ट्राइक होता है, इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान के टेररिस्ट को और पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को कि भारत जो है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहा है बलूचिस्तान के अंदर। इंडिया मेंटेन कर रहा है कि जाधव जो हमारे नेवी अधिकारी थे इनको यहाँ पे जो है डिनाइड राइटफुल एक्सेस टू द लीगल काउंसिल, कि सर जाधव को आपने फालतू पकड़ रखा है,
और जो हमारे कुलभूषण जाधव जी हैं, इनको आप यहाँ पे कोई जो है लीगल काउंसिल की एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं, इनको कानूनी सहायता नहीं मिल रही है। द पाकिस्तानी लॉ इज अनदर एपिसोड ऑफ द प्रोटेक्टेड लीगल प्रोसेस दैट बिगिन द इंडियाज अप्रोच द आईसीजे। और पाकिस्तान जो है यहाँ पे ट्रायल शुरू कर देता है अपने कोर्ट्स के अंदर कुलभूषण यादव का, और भारत कहता है छोड़ो पाकिस्तान को, पाकिस्तान नहीं सुन रहा तो आईसीजे में जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ। वहां पे जाने के बाद में क्या होता है, व्हाट had India argued in the ICJ International Court of Justice में भारत ने क्या दलील रखी? So India had argued that ICJ in the May 2017 that Jadhav had been denied this right under the Vienna Convention and the Pakistan had failed to inform the New Delhi about it, है ना, कि सर आप पाकिस्तान में किसी हमारे अधिकारी के खिलाफ यहाँ पे कोई कोर्ट ट्रायल चला रहे हैं, आप वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, पहली बात तो हमारे अधिकारी को आपके कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। पहली बात, आपके कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो भी वियना कन्वेंशन क्या कहता है कि सर उनको काउंसलर एक्सेस होगा, उनको उनकी पसंद का कोई भी यहाँ पे एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, यह चीज भी होनी चाहिए। जबकि आपने पाकिस्तान वालों ने हमको बताया नहीं। आईसीजे बोलता है बिल्कुल सही है, वियना कन्वेंशन तो यही कहता है कि सर अगर मेरे को किसी भी इंटरनेशनल, जैसे सपोज कल मेरे को इटालियन मरीन्स को, जो केरला का केस होता है इटालियन मरीन्स वाला, तो इटालियन मरीन्स को मेरे को ट्रायल करना था ना, यहाँ पे केस चलना था, तो मैंने उन मरीन्स को क्या किया था, इंडिया से बकायदा समन गया इटली की एम्बेसी को, इटली की एम्बेसी से बकायदा वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और दोनों कंट्रीज के साथ में कॉपरेशन करते हुए, सर ये गलत तो हो गया, अब इसको जस्टिस कैसे करना, छोड़ तो सकते नहीं, तो बकायदा उन पर ट्रायल चलते हैं, बकायदा कंपेंसेशन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सब काम होता है, करोड़ों का कंपेंसेशन भी दिया गया था उनके केस को फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीजे हैड आस्क्ड पाक वायलेटेड द आर्टिकल 36 of the Vienna Convention by not allowing council access to the Jadhav and denying its right to the legal representation। कहा कि सर यहाँ पे जो वियना कन्वेंशन हो रखा है, वियना कन्वेंशन को यहाँ पे ब्रेक किया है पाकिस्तान ने, इस कारण यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये काफी सारी चीजें सही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे द लॉ पास ऑन द November 17 एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट बीइंग प्रेजेंटेड बाय द इमरान खान गवर्नमेंट टू प्रूव दैट इस्लामाबाद कंप्लाई विद द आईसीजे रूलिंग। तो अभी इन्होंने क्या किया, खाना पूर्ति करने के लिए आईसीजे के इस ऑर्डर की खाना पूर्ति, खाली एक तरीके से फॉर्मेलिटी करने के लिए कानून बना दिया कि सर ये रीअपील कर सकते हैं, पर रीअपील में भी क्या होगा, अभी तक इनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं, ये बेचारा अपने जेल में बैठा है, इनके बेसिकली खुद का जो है स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं। ठीक है ना, कुलभूषण जाधव का एक तरीके से आर्मी ऑफिसर को तुम इतना टॉर्चर करोगे तो हर आदमी यहाँ पे परेशान होगा या नहीं होगा। तो एट द सेम टाइम इनको कोई काउंसलर एक्सेस चाहिए, तो बोले काउंसलर एक्सेस नहीं, हमारा ही वकील इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सोचो सर, यहाँ पे कोई आदमी को पाकिस्तान ने टेररिस्ट बता रखा है और पाकिस्तान का कोई वकील आपको लगता है पाकिस्तान के कोर्ट में उसका पक्ष अच्छे से 100% रखेगा? बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई काउंसलर वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट करे उनको, पर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो व्हाई डिड द आईसीजे रूल? तो आफ्टर जो है अप्रैल 2017 में इनके अरेस्ट होने के बाद में जाधव को मौत की सजा सुनाई जाती है मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान के द्वारा, है ना। तो इंडिया मूव्ड द आईसीजे पॉइंटेड दैट पाकिस्तान हैड फेल्ड टू प्रोवाइड काउंसलर एक्सेस, है ना। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मई 18 2017 में आईसीजे पाकिस्तान को कहता है कि टेक ऑल द मेजर्स एट इट्स डिस्पोजेबल टू एंश्योर दैट जाधव इज नॉट executed pending its final decision. It observed that Pakistan had violated Article 36 of the Vienna Convention and by not allowing the India's council access to the Jadhav by denying its right to the proper legal representation। तो कह रहा है कि प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसलिए जाधव को फांसी नहीं होनी चाहिए जब तक कि मेरा कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। और यहाँ पे आईसीजे फाइनल ऑर्डर देता है कि इसको रीअपील करो, केस को वापस सुनवाई करो और केस के अंदर वापस देखो क्या कमियां रह गई है। With this law, help Jadhav access the legal counsel. The law will end up as a mere paperwork। कहा जा रहा है कि लॉ है वो खाली कागजी कार्यवाही के रूप में काम करके जो पाकिस्तान नया कानून लेकर आया है ना, fails to provide verifiable legal access to Jadhav। तो यहाँ पे कोई verifiable legal access नहीं। अगर पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमने कानून बना दिया और हमने एक्सेस दे दी तो उसको मानना पड़ेगा भारत और आईसीजे को। अब उसके बाद में आईसीजे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इंडिया हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस द मिसगिविंग्स। भारत ऑलरेडी जो है इस पे डिस्प्लेजर बता रहा है। हमारे जो विदेश मंत्रालय है वो उन्होंने कहा है द लॉ इज रिपीट ऑफ द इंटरनेशनल कोड। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं कि सर हम भविष्य के अंदर भी क्या कसाएंगे, इनके ऊपर वापस घसीटा जाएगा इनको आईसीजे के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ऑफ द जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020, तो दिल्ली ने इसको रिजेक्ट किया है अभी हाल ही में कि सर यहाँ पे जो गोल्स दिए आईसीजे ने ऑब्जर्वेशन के अंदर वो कंप्लीट नहीं कर रहे। इट क्रिएट्स अ मशीनरी ऑफ इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे आईसीजे ने क्या कहा कि आपके पास में कोई भी अगर दूसरे देश का आदमी को ट्रायल कर रहे हो तो उसके लिए एक इफेक्टिव मशीनरी होनी चाहिए कि क्या आपने वियना कन्वेंशन को फॉलो किया,
तो उसके लिए एक मशीनरी होनी चाहिए उसको रिव्यू और रिकंसिडर करने के लिए। आईसीजे ने ये ऑर्डर दिया और आपने कोई मशीनरी क्रिएट ही नहीं की है यहाँ पे, ठीक है। तो Ministry of External Affairs pointed that statement of the law November 2021 actually codified ordinance of the May 2020 without removing the shortcomings, है ना। तो आपके पास में जो पुराने ही कानून है, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, इन्होंने वापस पुराना कानून चिपका दिया है और एक तरीके से कह रहे हैं सर देखो हमने आईसीजे के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया है। विदाउट रिव्यूइंग शॉर्टकमिंग इंडिया मेंटेन्स दैट पाकिस्तान कैन नॉट प्रोवाइड द फेयर ट्रायल फॉर जादव। तो यहाँ पे भारत कह रहा है पाकिस्तान कभी भी यहाँ पे एक फेयर ट्रायल नहीं दे सकता है जादव की, एंड दैट इज वाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि जादव का जो ट्रायल है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों? इट शुड बी इन द इंटरनेशनल कोर्ट्स। आर वी क्लियर विद दैट मेहता जी? चलिए, तो व्हाई हैज पाकिस्तान मेड दिस मूव नाउ? पाकिस्तान अभी ऐसा कानून क्यों बना है? पाकिस्तान के जो कानून मंत्री हैं फैरोग नसीम, है ना, इन्होंने अभी कहा है पाकिस्तान anticipated that India was planning to go to ICJ again to file contempt notice against Pakistan and that this law had averted the preempted this possible Indian move, and following this new law Pakistan is likely to claim that it has not just complied with verdict of the ICJ but also enshrined it as a law. Pakistan's former High Commissioner Abdul Bashir pointed out that Pakistan agreed to accept the jurisdiction of the ICJ during the government of the Prime Minister Nawaz Sharif of the Pakistan Muslim League, है ना, Nawaz, but and that the present government of the Prime Minister Imran Khan dealing with the legacy issue. It therefore appears that the law is also a move to settle the domestic political discord between the Mr. Khan and the principal opposition party led by the Maryam Nawaz, daughter of the Nawaz Sharif. तो यहाँ पे काफी सारी चीजें। एक और चीज है सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है सर? आपके पास में इंटरनेशनल जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में लीगल मामलों को लेकर के उनको सुलझाने के लिए ये कोर्ट, कोई भी कंट्री जैसे यहाँ पे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सर दोनों पार्टीज यहाँ पे एग्री करे कि यह कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वह इन दोनों को मान्य होगा, वह इन दोनों को मान्य होगा। अगर यहाँ पे एक भी पार्टी कहती है कि सर मैं तो कोर्ट के अंदर दलील ही नहीं रखना चाहता, मैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ही नहीं मानता, तो सर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ जब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या किया था? एक कानून बनाया था, है ना, और एक कानून के थ्रू उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जुरिस्डिक्शन, उनका क्षेत्राधिकार यहाँ पाकिस्तान पे भी लगेगा, और भारत ऑलरेडी आईसीजे को मान नहीं रहा है। तो जो भारत ने देखा कि आईसीजे का जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान पे लगता है और आईसीजे में हमारे अच्छे खासे बोलबाला है, भारत का है, ठीक है ना, तो भारत आईसीजे को अप्रोच करता है जब पाकिस्तान यहाँ पे कुछ इलीगल काम कर रहा है मिस्टर जाधव के साथ। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? तो इसी कारण अभी कानून क्यों लेके आए लोग? कानून इसीलिए लेके आए क्योंकि नवाज शरीफ ने जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से थे, मतलब पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में थी उससे थे, प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तो कर दिया आईसीजे को हम इंप्लीमेंट करेंगे, पर अभी जो है इमरान खान वो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, वो थोड़ा सा इसके अंदर आनाकानी कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली ये जो डिसीजन भी है हाफ हार्टेड डिसीजन है ये कानून लेके आने का। तो जो आईसीजे आरआर है ना, रिव्यू रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2021 लेकर है, ये हाफ हार्टेड कंसिडरेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के जो गोल्स को सेटल करने के लिए, दैट्स इट, है ना। तो भारत के द्वारा वापस हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे कंटेम्प्ट फाइल किया जाएगा, हेग में है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड सर एंड मैम, राइट। तो why in the India's coal usage under the scrutiny? सर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके आज के न्यूज के अंदर, राइट। आज की न्यूज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है और इस आर्टिकल को हमने अच्छे से पढ़ना भी होता है। So what is the article here? ओके सर, याद रखना आज का ये संडे है और संडे स्पेसिफिक आर्टिकल आपको जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ पे FAQ सेक्शन आता है। क्या आता है सर आपके पास में? FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना सर। और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस का एनालिटिकल और फैक्चुअल जवाब देने की कोशिश की जाती है काफी जर्नलिस्टिक सोर्सेज के द्वारा, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अर्चित, अनादि, श्वेता, यश, शुभांगी, प्राची, एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस लाइव राइट नाउ। तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाई इज इंडिया कोल यूसेज अंडर द स्क्रूटनी, कि सर हमारा जो भारत का जो कोल है, कोयला जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इतनी सारी निगहबान, इतनी सारी नजरें और इतने सारे एक तरीके से स्क्रूटनी क्यों है? कोल ज्यादा यूज करो, कम यूज करो, कोल का यूसेज घटाओ, और व्हाई इट इज हैपनिंग? कोल इज यूज्ड टू मीट और 70% ऑफ द इंडियाज पावर नीड, है ना। इट इज द मोस्ट कम्स ऑफ द डोमेस्टिक माइंस। तो भारत की माइंस से बेसिकली 60% जो कोयला है हम माइन करते हैं, ये पता होना चाहिए अपने पास में, ठीक है ना।
और 70% भारत की जो जो पावर नीड्स है वो कोयले से कंप्लीट होती है, यह भी पता होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? विकास, हाउ आर यू? राइट, तो दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं हाउ डज फॉसिल फ्यूल इंपैक्ट द एनवायरमेंट एंड व्हाई इज इंडिया डिपेंडेंट ऑन इट। तो दो चीजें पढ़नी है कि सर हम जो है बार बार कह रहे हैं कि इस फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल क्या हुआ सर? कोल, कोल क्या हुआ सर? पेट्रोल, है ना। और क्या हुआ सर आपके पास में? पेट्रोल के बाद में क्या हो सकता है आपके पास में? डीजल, है ना, ठीक है ना। दीज ऑल विच आर रिलीजिंग CO2, विच आर रिलीजिंग CH4 इनटू द एनवायरनमेंट एंड दैट इज द ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ये ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट को वापस रीहीट करती हैं, है ना। तो यहाँ पे सन से आने वाली रेडिएशन को ट्रैप करके रखती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे ये गर्म करती जाती है। एंड दैट इज व्हाई दिस फॉसिल फ्यूल आर इंपैक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड व्हाई द इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इट। क्योंकि भारत के अंदर आज भी जो है इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप नहीं है, आज भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं है। तो इंडिया में अगर मैं कहूं 100 यूनिट डेली का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अगर 100 यूनिट आपका डेली का प्रोड्यूस होता है तो उसमें से 100 में से लगभग 70 यूनिट कहां से आता है सर? कोल से आता है। किससे आता है सर? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, TPP जिसको कहा जाता है, ठीक है, इससे आता है सर। क्या ये याद रखेंगे हम? क्या ये याद रख लेंगे? दिस इज फॉर अ स्टार्ट। ऑल फाइन सर, ऑल राइट। मूविंग फॉरवर्ड, पहला क्वेश्चन, द स्टोरी सो फार। अभी आपको यह समझना है कि अभी यूनाइटेड नेशंस जो चेंज का UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी आपके पास में IPCC की, आपको पता होना चाहिए, COP26 जिसको कहा गया, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां हुई सर? आपके पास में ग्लासगो में हुई। कहां हुई सर? ये आपके पास में ग्लासगो में हुई। और सर ये ग्लासगो जो है आपको पता होना चाहिए यूके के अंदर एक जगह का नाम है, स्कॉटलैंड के पास में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं और एनवायरमेंट मिनिस्टर वो भी इसमें जाते हैं। भारत के जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह, क्या नाम है? भूपेंद्र यादव, वो इसमें जाते हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉमिसिंग अ फेज डाउन रेदर देन द फेज आउट। यहाँ पे लोग कह रहे हैं हमको कोयले को बंद कर दो, हम कहते हैं कोयला बंद नहीं करेंगे, वी विल नॉट फेज इट आउट, हम यहाँ पे इसको फेज डाउन करेंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या बोला गया हमारे द्वारा? भारत का क्या वर्ड है? इंडिया विल फेज आउट, इंडिया विल नॉट फेज डाउन। पहला पॉइंट तो यह बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला जाता है आपके पास में? दिस कॉज मेनी रेज क्वेश्चन अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। अर्लियर COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबमिट हुई थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमिट किया था टर्निंग इंडिया इनटू द कार्बन न्यूट्रल, है ना। और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने COP 2021 में क्या कहा आपके पास में? यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने कहा था कि इंडिया सर कार्बन न्यूट्रल होने वाला है। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि सर हमारे पास में जितना कार्बन हम उत्पन्न करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, एमिट करेंगे, है ना, उतना ही हम अवशोषित भी कर लेंगे, वापस उसको रिस्टोर भी कर लेंगे, कहीं ना कहीं पैक करके उसको समुद्र के अंदर या फिर रिस्टोर करके रखेंगे। इस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से टेक्नोलॉजी हो सकता है ना, फॉरेस्ट्री के थ्रू हो सकता है, प्लांटेशन के थ्रू हो सकता है। विल हैव द डिफरेंट मींस कि सर जितना CO2 रिलीज किया उतना ही हम वापस ले भी लेंगे, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। सो सपोज 5 यूनिट तुमने CO2 इमिट किया तो 5 यूनिट ही तुमने CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो एनवायरमेंट में क्या रहा सर? आपकी तरफ से कार्बन न्यूट्रल रहा। तो सर 2070 तक 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होगा। अभी मोदी जी यह बोल के आए हैं अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर, ठीक है ना। व्हाई मस्ट डिपेंडेंस ऑन द कोल बी रिड्यूस, और ये कहा जा रहा है कि सर ये कोयले के ऊपर हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंस है, व्हाई शुड वी रिड्यूस इट, इसको कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि कार्बन एमिशन जो है आपके पास में ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो जो भी CO2 है, CO2 क्या है सर आपके पास में? ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्या करती है सर? एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, एवरेज टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज करती है सर, उसको इंक्रीज करती है। तो जो CO2 हमारे एनवायरमेंट में रहनी चाहिए, यस सर, बट एक मात्रा से ज्यादा हो जाएगी, तो मात्रा से ज्यादा होने से क्या होगा? ये सन से आने वाली रेडिएशन को ज्यादा हीट करे, ज्यादा ट्रैप करेगी, और आउटगोइंग कुछ रेडिएशन अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस की तरफ जाती है, उनको स्पेस में जाने से रोकेगी और उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बाइंड करके रखेगी। एंड दैट इज व्हाई जो हमारे अर्थ के चारों तरफ का ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में अगर CO2 ज्यादा हुआ तो इनकमिंग रेडिएशन और यहां से अर्थ से जो आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, इन दोनों को ये ट्रैप करके रखेगी। इसके कारण ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे IPCC का टारगेट है पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी का कि शताब्दी के अंत तक हमको 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक की ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ने देना है ना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना। प्रेफरेंस पॉइंट है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कही है।
CO2 खतरनाक है सर, CO2 का एमिशन कम करना होगा आपको, ठीक है ना। So countries has been committed themselves and turning the carbon neutral by various dates. One key way to achieve the carbon neutrality in the country is compensate for their carbon emission by capturing the equal amount of the carbon from atmosphere. It is to reduce dependence on the coal. और फिर क्या कहा जाता है सर, अगर CO2 को कम करना है तो सर एक तो सर CO2 को यहाँ पे क्या करना शुरू कर दो सर, आपके पास में कैप्चर करना शुरू कर दो, CO2 को कैप्चर करो, है ना, जितना आप इमिट करो उसको वापस सिक्वेस्ट्रेशन भी करो, अब्सॉर्ब भी करो, और एट द सेम टाइम सर कोल को आप बंद करो, फेज आउट द कोल, कोल को बिल्कुल बंद कर दो सर, है ना। सो कोल इज मोस्ट पॉल्यूटिंग अमंग द फॉसिल फ्यूल। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसी चीज के कारण होता है, तो कोयला जलाने से होता है। जितना पेट्रोल और डीजल और CNG और दूसरी चीजों से नहीं होता है, जितना दूसरे फॉसिल फ्यूल खतरनाक नहीं, उतना खतरनाक कोयला है सर अकेला, है ना। हैज इट्स पर्टिकुलर हैज कम अंडर द स्क्रूटनी। इसीलिए सर जो भी देश कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि भारत, अभी मैंने बताया 70% एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द कोल, एंड दैट इज वाई इंडिया कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मंत्री जी गए भूपेंद्र यादव जी, वो बोल क्या है, भारत फेज आउट नहीं करने वाला है, फेज डाउन करने वाला है। देखो एक और वर्ड है, इट विल फेज डाउन, तो फेज आउट करेंगे नहीं सर, हम क्या करने वाले हैं, फेज डाउन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, फेज डाउन। मतलब सर आज की तारीख में हम 70% एनर्जी इससे निकाल रहे हैं, कल 60% निकालेंगे, परसों उससे थोड़ा और कम करेंगे, है ना, अगले 10 सालों में थोड़ा सा और कम करेंगे। अनादि COP 26 पे ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ, COP पे भी ले चुका हूँ और उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी ले चुका हूँ, है ना। इसका मतलब आपने इस लेसन इस चैनल के ऊपर मेरी वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछली सारी क्लासेस उठा के देखो, है ना। You go to this session brother, ठीक है ना, और वीडियो सेशन में चले जाओ इस YouTube चैनल पे और मैं स्क्रॉल करते जाओ, मेरी थंबनेल दिख जाएगी, है ना, उसको चेक करते जाओ, ऊपर की तरफ जाते जाओ, ठीक है ना, और सारी की सारी वीडियोस को देख लेना विद चैलेंज। मैं कह रहा हूँ आपको, एग्जाम के अंदर चेहरे पे स्माइल ना आ जाए ना, मजा ना आ जाए ना आपको, तो फिर बताना मेरे को कि नहीं सर जे सर ने पढ़ाया था और ये चीज़ एग्जाम में आ भी गई है। पिछली 2 क्लैट के तो रिकॉर्ड्स हैं और इस बार तीसरा क्लैट होने वाला है, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। चलिए सर, तो कोल पे डिपेंडेंस हमने कम करनी। आगे सर हमारे पास में व्हाई इट इज डिफिकल्ट। सर सब लोग बोल तो रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए, कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, फेज आउट कर देंगे, फेज डाउन कर देंगे, कोल डिपेंडेंस कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, जो नेट जीरो की बात करते हैं अमेरिका वगैरह। पर सर ये डिफिकल्ट है क्या? हाँ बिल्कुल। कोल यूज टू मीट और 70% ऑफ द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी नीड। भारत के अंदर जो विद्युत निर्माण होता है 70% कहां से आता है? कोयले से आता है, राइट। मोस्ट ऑफ द कोल कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक माइंस। और भारत के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा कोयला है वो कहां से आता है? भारत के अंदर स्वदेशी, जैसे कि आपके पास में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो उपयुक्त और उपलब्ध जो माइंस है, उन माइंस से कोयला जो है यहाँ पे खनन करके माइन करके लाया जाता है, ठीक है ना। फिस्कल ईयर यहाँ पे 2020-21 में इंडिया प्रोड्यूस 700 मिलियन टन ऑफ द कोल, है ना। इससे पहले 2 साल पहले हमने लगभग 413 मिलियन टन कोल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया था डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, है ना। सिंस 2019 डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज स्टैग्नेटेड एंड हैज बीन अनेबल टू मीट द राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड लीडिंग टू द राइज इन द इंपोर्ट। तो अभी क्या है, पहले तो हमारा खपत कम था, पर अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खपत बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हैज बीन इंक्रीज। देखो सर, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, प्लस इसके अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, प्लस गांवों के अंदर, खेतों के अंदर, ढाणियों के अंदर, याद करो उज्ज्वला योजना। सोचो सर, जो गांव के अंदर पहले 20 घरों में लाइट थी, अब सर 80 घरों में लाइट है। अभी भी कुछ घर है जो नॉट इलेक्ट्रिफाइड है, बट इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड जो है 20-30% बढ़ चुकी है। तो सर वो डिमांड कहां से फुलफिल होगी? कोयले से, और कोयला बेसिकली लिमिटेड है, इसीलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, ये कोयला बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमको इंपोर्ट, है ना। तो हमारे पास में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, देयर विल बी राइज इन इंपोर्ट। तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो कोल प्रोडक्शन के अंदर दे आर लिमिटेड टू द छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे हमारे कंट्री का कोल प्रोडक्शन ये 3-4 राज्यों तक ही है ना। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इनका होता है 550 मिलियन टन के आसपास में। लगभग 75% इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है वो इन्हीं 3-4 राज्यों से आता है। नाम याद रखना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, MP, है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, MP, ये 4 राज्य भारत के टोटल कोल प्रोडक्शन का 75% निकाल देते हैं, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे 2030 तक, है ना। 50% एनर्जी नीड है हमारी, वो रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। तो आज हम कह रहे हैं कि सर 70% जो है वो कोल से आ रही है, 70% कहां से आ रही है? कोल से आ रही है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर 50% जो हमारी नीड होगी भविष्य में वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। किससे होगी सर? अक्षय ऊर्जा से होगी, चाहे आपके सोलार से हो, चाहे आपके नाभिकीय ऊर्जा से हो, चाहे आपके कोई और पॉइंट से हो, बट सर ऐसी चीज होगी जिससे कि यहाँ पे एनवायरमेंट को
कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, कोई प्रभाव ना पड़े। विकास जी यहाँ पे S400 का भी टॉपिक करवाया है मैंने, S400 को काटसा के साथ में पढ़ाया था मैंने। किसके साथ पढ़ाया था विकास? S400 को काटसा। काटसा पता है आपको? काटसा एक यूएस लॉ है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी विद द सैंक्शन एक्ट, है ना, तो ये याद रखना चाहिए आपको। काटसा मैंने पढ़ाया था S400 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So according to estimate, Center of the Science and Environment promised to reduce the emission by the 1 billion tons that the India would need to reduce the carbon output by the 22% by 2030. Now meets about 12% of its electricity need from the renewable sources and increasing the 50% by 30 will be difficult. तो कह रहे हैं कि आज की तारीख में हम जो कह रहे हैं ना सर कि 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, आज की तारीख में हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है सर? रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आज की तारीख में आ रही है 12%। इसको सर 2030 तक बाय 2030 50% करने के लिए हमको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मतलब पिछले 20 30 40 सालों में हमने रिन्यूएबल एनर्जी में जो उखाड़ा है उससे हम खाली अपनी 10% 12% एनर्जी नीड पूरी कर पा रहे हैं, उसको सर 4 गुना करना होगा, है ना, 12 चौके 48, है ना, 12 4 जा 48, ऑलमोस्ट 50% करने के लिए हमको सर और कितना इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग लगेगा इसके ऊपर, है ना। तो यह एक अपने आप में क्या होगा सर? चैलेंजिंग बात होने वाली है। अर्चित जी अपने आप में क्या होने वाली है? दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग थिंग, राइट सर। तो यू मस्ट बी नोइंग कि सर इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे कोल यूसेज हो रहा है उसको स्क्रूटनी में क्यों डाला जा रहा है। एक ग्लासगो के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है पता होना चाहिए, कार्बन न्यूट्रलिटी के साथ साथ में ग्रीन हाउस गैस क्या है ये पता होना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट डील है वह पता होनी चाहिए आपको, राइट सर। इसी संदर्भ के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। Solar are cheap, they are unreliable because of the intermittency problem. Thus, they require the use of the storage battery, which adds to the cost. It should be noted that the many low-income countries and the low-saving may not even possess the capital required to invest in renewable energy. तो सर हम कह रहे हैं सर यहाँ पे हमारी सोलार को 12% से रिन्यूएबल एनर्जी को 50% तक लेके जाना है, पर सर सोलार एनर्जी जो है ना, सोलार एनर्जी जैसे फोटोवोल्टिक सेल है, इससे सर यहाँ पे पैदा होती है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी, पर सर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे स्टोर करने के लिए चाहिए होगी आपके पास में एक बैटरी। तो बैटरी जो यहाँ पे लगने वाली है आपकी भैया, वो बैटरी की कीमत होती है बहुत ज्यादा, बैटरी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और सर इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अर्चित, तुम्हें पता है? इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोस्त है कि उसको सर स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे पानी तुम्हारे घर में आता है, तुमने एक हौद बना दिया, टैंक बना दिया, नल खोला, वो पूरा भर गया, मजा आ गया, अब 2 दिन तक चिंता नहीं पानी की, है ना, आश्वस्त हो गए तुम। क्या इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा है? सर सुबह सुबह 6 बजे लाइट आएगी, 6 से 8 बजे तक मैंने 2 बैटरी भर के रख दी सर, 2 बैटरी इलेक्ट्रिसिटी है सर मेरे घर पे, है ऐसा कुछ होता है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन, ग्रिड लगातार चलता है, लगातार चलता है। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी निगेटिविटी ये है दोस्तों कि प्रोडक्शन के साथ साथ ही जहां ये प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में ये प्रोडक्शन हो रही है, ये वहां से आपके ग्रिड के साथ में जो है बिजली घर तक आती है, और बिजली घर से जो है आपके घर पे आती है, आपके घर पे आती है सपोज। तो सर ये इंस्टेंटली यूज होनी चाहिए। अगर ये इंस्टेंट यूज नहीं हुआ, इसको स्टोरेज करना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है, समझ रहे हो। प्लस अगर सपोज यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट 10 यूनिट एनर्जी बनाता है, तो हम अपने बिजली घर तक और यहां तक आने के बीच में रेजिस्टेंस के कारण कई एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, और वो एनर्जी लॉसेस जो होते हैं आपके पास में लगभग यहाँ पे 4 से 5 यूनिट एनर्जी लॉस हो जाते हैं। मतलब आपके घर पर आती है लगभग 5 से 6 यूनिट एनर्जी, तो 3 4 5 यूनिट एनर्जी बीच में ट्रांसमिशन के कारण क्योंकि ये बिजली के तार है ना, और अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि बिजली के तारों में होती है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी मेटल में ट्रेवल करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और इलेक्ट्रिसिटी जब भी ट्रेवल करती है वो रेजिस्टेंस को फेस करती है, रेजिस्टेंस को फेस करती है तो वहां पे एनर्जी लूज होती है। याद रख लेंगे इसको, याद रख लेंगे इसको। तो सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए सपोज सर हमने कल की तारीख में यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की जगह यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल बनाया, यह एनर्जी आपके घर तक पहुंचानी है, हम पहुंचा भी देंगे। घर के ऊपर रूफटॉप पे हमने थर्मल पावर प्लांट लगा दी, मतलब ये फोटोवोल्टिक सेल लगा दी, सोलर सेल, पर इसको हाथों हाथ यूज करना होगा सर। इसकी बैटरी अगर आप खरीदेंगे बहुत ही महंगी, इतनी बड़ी बैटरी का आपके पूरे घर को चला सके, एसी को चला सकते, पंखों को, लाइट्स को, कूलर को, सबको चला सके, रेफ्रिजरेटर को चला सके, तो सर अच्छा खासा यहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए। और वो स्टोरेज जाएगा सर लाखों के अंदर, वो बैटरी की वैल्यू। क्या खरीदोगे तुम? 2 4 5 हजार रुपए का लाइट का बिल देते हुए मौत आती है जनता को,
उसके अंदर भी बेसिकली जो है ये सरकार पलट देते हैं, है ना। 200 रुपए बिल ज्यादा आ गया हो तो अगली बार सरकार का पत्ता साफ, ठीक है ना। तो सोचो सर यहाँ पे लाखों रुपए जब रिन्यूएबल एनर्जी की जो बैटरी लगने वाली है, सोलर फोटोवोल्टिक बैटरी लगने वाली लगाओगे, हम हजारों में से कुछ चंद लोग जो इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लगा पाए, बाकी लोग लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो सर यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि सर आज की तारीख में हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी 12% है, उसको सर हमारी एनर्जी का 50% तक लेके आने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला है। क्या हम ये करने वाले हैं? तो जो हाई इनकम कंट्री कर पाएगी, चाइना जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री कर पाएगी, क्या इंडिया जैसी कंट्री जो लो इनकम कंट्री है ना, तो जो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है, लो इनकम कंट्रीज क्या ये काम कर पाएगी, ठीक है ना। So further, the damage that the coal causes commonly owned resources like the environment not factored into its cost. काफी सारी चीजें, काफी सारे challenges यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सर क्या समझ में आया? Have you read it and have you analyzed it and have you understood it, sir? आगे बढ़े सर, इसके ऊपर आगे बढ़े तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज it fair to ask India to phase out coal? और फिर कहा जा रहा है कि सर इंडिया अपने एनर्जी की 70% डिमांड कोल से कंप्लीट करता है। सो इज इट ओके कि सर हम यहाँ पे इंडिया को बोले कि सर कोल को ऑल टुगेदर फेज आउट कर दो, इंडिया को कोल को बंद ही कर दो, इज इट ओके? So India has fought attempts to the developed countries to impose the cap on its emission. It has argued that adopting the stringent steps to reduce the carbon emission can drag down the growth and affect the efforts of the reduce the poverty. भारत में गरीबी बहुत है अभी भी, तो ये कह रहे हैं कि सर आज की तारीख में अगर हम इस कोल को यहाँ पे फेज आउट कर देंगे और हम रिन्यूएबल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी की तरफ जाएंगे जहाँ पे कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, तो सर सबसे बड़ी चीज तो पैसा नहीं है हमारे पास में, पहली बात। दूसरी बात सर अगर हम कोल को बंद कर देंगे तो हमारे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चाहिए। तो चाइना ने अभी बेसिकली देखो कोल प्लांट को बंद किया था, एनवायरमेंट को सुधारने के लिए क्या हुआ था, ब्लैकआउट हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई सर वहां पे 10 दिन के लिए, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया था। कोविड के टाइम भी हुआ था और एक अभी हुआ था जस्ट ग्लासगो के 10 दिन पहले, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फोटोज आई थी, देखा था ना, ऐसी फोटोज आई थी चाइना में चारों तरफ खाली स्ट्रीट लाइट के ऊपर बेसिकली लाइट चल रही है ना, बाकी सारी की सारी घरों के अंदर लाइटें बंद। क्यों? फेज आउट। क्यों? वहां पे ये कोल को बेसिकली बंद करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे क्या हुआ फिर। So it should also be noted that per capita carbon emission countries such as India, China are still lower than those of the many developed countries. According to the World Bank data, 2018 में वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा प्रोड्यूस किया है कि इंडिया प्रोड्यूस 1.8 मेट्रिक टन ऑफ द कार्बन एमिशन पर कैपिटा, है ना, और 15 मेट्रिक टन प्रोड्यूस बाय द यूएसए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है आपके पास में 1.8 मेट्रिक टन कार्बन प्रोड्यूस करता है पर पर्सन। कौन करता है सर? ये इंडिया करता है। जबकि यूएसए कितना कर रहा है सर? यूएसए इसी के कंपेयर में कर रहा है 5.2 मेट्रिक टन ऑफ द कार्बन इमिशन पर पर्सन कर रहा है। तो सर ये चीज बताओ कि कार्बन और कोयला और किसको घटाना चाहिए? क्या भारत को घटाना चाहिए जो 1.8 मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन, या फिर यहाँ पे अमेरिका जैसे देशों को घटाना चाहिए, यूएसए, राइट सर? सर क्या ये कोल से बने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं करना पड़ता लाइक द सोलार? कोल से बनी इलेक्ट्रिसिटी हाथों हाथ ट्रांसमिट होती है ना भैया, हाथों हाथ ट्रांसमिट होती है, हाथों हाथ यहाँ पे यूज होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो आपके घरों तक पहुंच रही है वो लाइट की रफ्तार से, बेसिकली समझ रहे हो? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है थर्मल पावर प्लांट्स को एक्टिव किया जाता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना, एकदम लाइव स्ट्रीम की तरह। यहां से आपको पढ़ाना है, हम यहां से लाइव स्ट्रीम प्रेस करते हैं, आपको लाइव क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह नहीं है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। तो यूएस एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया का कमिटमेंट है फेज डाउन कोल का हैज बिकम द कार्बन न्यूट्रल में एक्चुअली बी रेदर जनरस कमिटमेंट। तो कहा जा रहा है कि सर भारत कह रहा है सर हमारा अभी कार्बन इमिशन इतना है 1.8 मेट्रिक टन, तो जो तुमसे भी बेसिकली क्या है ऑलरेडी 8 गुना कम कार्बन हम एमिट कर रहे हैं प्रति व्यक्ति पर कैपिटा, ठीक है ना। परंतु भारत कह रहा है कि मैं इसको भी और कम करूंगा, तो तुमको तो जनरस मानना चाहिए। अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि भारत बहुत ही जनरस है ना, एक तरीके से विकसित देश नहीं है, पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे सुनिश्चित नहीं है भारत की, और भारत इसमें भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आकर के ये कह रहा है कि सर मैं यहाँ पे 1.8 मेट्रिक टन कार्बन इमिट करता हूं पर व्यक्ति और मैं यह भी कम करने की कोशिश करूंगा, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, इट इज अ वेरी जनरस, है ना।
तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री से तो बहुत ही अच्छा कमिटमेंट कर रहा है भारत। क्रिटिक्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द फोकस ऑन द एंडिंग, राइट। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट लाइज अहेड बाद में भविष्य की बातें हैं, उसके अंदर काफी रेमिफिकेशंस दे रखा है, वो हम पता करें या ना करें दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, वो हमारे पास में बेटा सेकेंडरी चीज हो जाती है। आर वी क्लियर ऑन दैट? आर वी क्लियर ऑन दैट अनादि? राइट सर। मूविंग फॉरवर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको सर, अनअकैडमी लॉ हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है, इस ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करें। इसके ऊपर मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। एडमिन सेक्शन में जाकर के आप कैप्टन GK_JJ सर मेरे को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द PDF, द गाइडेंस फॉर द प्लस क्लासेस एंड एवरीथिंग, राइट सर। मैं आज शाम से आपके पास में क्या लेके आ रहा हूँ, ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं 360 डिग्री एनालिसिस देने वाला हूँ सारे नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स का। ये प्लस क्लासेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होने वाली, बहुत ही प्लान्ड वे में यह क्लासेस मैं देने वाला हूँ। रिवीजन भी यहाँ पे होने वाले हैं। आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, प्लीज गो हेड एंड फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी। मेरा यूजर प्रोफाइल जो है जगदीश चंद्र जांगिड नाम से आप अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं, और जगदीश चंद्र जांगिड का यूजर प्रोफाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उस पर क्लिक कीजिए जगदीश चंद्र जांगिड यूजर प्रोफाइल लिंक पे, और फॉलो कीजिए मेरे को अनअकैडमी पे। फॉलो करने से क्या होगा, मेरी जब भी यहाँ पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होगी, जैसे आज एक स्पेशल क्लास है आपके पास में, तो यह स्पेशल क्लास आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। क्लास का टाइम क्या है आपके पास में, 9 PM। क्लास का टाइम क्या है सर, 9 PM एट नाइट। यह स्पेशल क्लास है, इसको अटेंड कर लेना आप, पहली बात। तो दूसरा, अभी तक अगर आपने विदिश 10 कोड को यूज करके अनअकैडमी का प्लस कोर्स नहीं यूज किया है तो इसको जल्दी से परचेस कर लीजिए। 1400 रुपए प्रति महीना, 1500, 1900 रुपए, 2300 रुपए प्रति महीना पे भी आप यहाँ पे कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आपकी तैयारी को यहाँ पे, आपकी प्रिपरेशन को ओवरहॉल करना है। व्हेन वी आर स्ट्राइकिंग टू ओवरहॉल योर प्रिपरेशन, व्हाट वी मीन इज आप अगले 6 से 8 महीने में जो आप एग्जाम्स और एंट्रेंसेस लिखने वाले हैं उसके अंदर करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। करंट अफेयर के यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लैट के अंदर, तो ठीक है। तो सर अच्छे से तैयारी कर लो। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू एनरोल इनटू द कोर्स एंड यूज द कोड विदिश10। विदिश10 कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, वन टाइम फीस पे और EMI ऑप्शन पे भी, ठीक है सर। मूविंग फॉरवर्ड सर, आज से मतलब 21 तारीख से ही शाम को 4 बजे आपकी क्लास लाइव हो जाएगी अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर। यह प्लस कोर्स की क्लास है, किसकी सर, दिस इज द प्लस कोर्स क्लास है। जैसे कि यहाँ पे सितंबर मंथ के, नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास में इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में सहजता से आपको समझाया जा सके, इसके लिए क्लासेस होने वाली है। तो सर आज शाम को आप कितने बजे मिल रहे हैं, 4 PM आफ्टरनून के अंदर ये क्लास होगी। दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्लस कोर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्लस कोर्स। इज इट क्लियर? देन गिव मी अ थम्स अप एवरी वन ऑफ यू। Archit, Anadi, Vikash, Rahul, every one of you who is watching this live right now, 4 PM exactly we are meeting on the live class। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अनअकैडमी लॉ, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम हैंडल, इसके ऊपर उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी। इसको फॉलो करते हुए भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, है ना। मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे क्लैट के करंट अफेयर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, राइट। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी द जीके कोर्स फॉर द क्लैट, है ना। तो यहाँ पे 2023 का भी मेरे पास में एक क्लैट का कोर्स चल रहा है, और यहाँ पे जो है ये 2022 के लिए भी क्लैट का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसमें भी आप यहाँ पे ज्वाइन इन कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई इनवाइट यू ऑल फॉर दिस क्लासेस, जहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, एनुअल करंट अफेयर्स की समरी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स, है ना, उनके वेरियस पार्ट्स और उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपके पास में लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। सो अगर आप अभी तक प्लस कोर्स में एनरोल नहीं है, प्लीज डू एनरोल एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट। तो यहाँ पे 1000-2000 रुपए प्रति महीना जो पेमेंट आप EMI की फॉर्मेट पे भी कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो आप जल्दी से इसको एनरोल जरूर कीजिएगा। बाकी की भी जो हमारे पास सारी व्यवस्था है हम वो भी आपको अवेलेबल करवाने वाले, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे 6 मंथ का प्लान ले सकते हैं 16,000 के अंदर, कितना सर, 16,800 में आप 6 मंथ का भी यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। 2,800 रुपए आप प्रति महीना पे कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आप विदिश10 कोड को यूज करने से 10% डिस्काउंट भी इसमें ले पाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दैट? तो जल्दी से आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड विदिश10 एंड सेव द मनी ऑन द सेम सर एंड मैम, राइट। स्कोर बूस्टर बैच हमारे पास में 6 महीने का बैच है, इसमें भी आपको क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। इवोल्व बैच है 2 साल का, यहाँ पे इसमें भी आपको एक्सेस मिल जाएगी 2030। और यहाँ पे कुछ क्लासेस ली जा रही है NLU के एल्यूमिनस के द्वारा, जो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली, स्ट्रीमलाइन करने वाली है गाइडेंस से रिलेटेड, है ना। पूजा मैम, केशव सर और कीर्ति मैम तीनों यहाँ पे क्लासेस लेने वाले हैं। यू प्लीज डू एनरोल। और प्लस क्लास को अभी तक एनरोल नहीं किया है, आई अगेन रीट्रेट, शाम को 4 बजे से क्लास शुरू हो रही है।
अभी इसको एनरोल कर लीजिए एंड डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, है ना, इन योर प्रिपरेशन। चाहे स्पेशल क्लास हो, प्लस क्लास हो, चाहे यूट्यूब क्लास हो, कंटेंट हो, प्रिपरेशन हो या स्ट्रेटेजी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एज एन एजुकेटर। वी आर कमिटेड टू मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज स्मूथ, राइट? So we will be providing you many of the law aptitude and the quick weekly T20 test as well, right? So इंडिया का एक हमारे पास में लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक भी देख पाएंगे। अभी आपको एनरोल करें, रैंक 1 आने पे आपको 100% और रैंक 2 to 5 के बीच में 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है। रैंक 1 को यहाँ पे अलग से 30 मिनट जो 1-to-1 एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है? एक स्पेशल क्लास होगी। तो सर आज का क्लास का शेड्यूल क्या है? स्पेशल क्लास है रात को 9 बजे, 9 PM there is going to be a special class, so I look forward to meet you all at that। तो प्लस क्लास कब है? प्लस क्लास कितने बजे? शाम को 4 बजे, ठीक है ना? और आपकी स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास है वो कब है? इस स्पेशल क्लास को आपको एक्सेस करना, जो नए स्टूडेंट्स हैं इस स्पेशल क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, मेरा कोड यूज करके फ्री में देख सकते हैं। यू विल बी एबल टू सी दिस क्लास इन द फ्री, अनलॉक कर सकते हैं विद इस 10 कोड को यूज करके। तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? Is this point clear to all of us? स्पेशल क्लास का टाइम क्या है? अर्चित, साहू, एवरी वन ऑफ यू, विकास एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग दिस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेटर, आप अनअकैडमी लर्नर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्लैट कैटेगरी में अपना नाम, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आएगा, यहाँ पे कोड पूछा जाएगा, विद इस 10 कोड को यूज करें और आप मेरी स्पेशल क्लास को देख सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है? स्पेशल क्लासेस में पोल से लर्निंग होगी आपकी, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में मैं क्विज कराऊंगा, रेज हैंड फीचर भी होगा, जो यहाँ पे प्लस सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पे ऑडियो कॉल्स के थ्रू भी यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने पास में, है ना? और यहाँ पे बेल आइकन भी होगा आपके पास में, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। जैसे ही आपने यहाँ पे अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरी स्पेशल क्लास लाइव होगी, तो है ना? इस क्लास के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी, लाइव रिकॉर्डेड, आप कहीं से भी देख पाएंगे ये क्लास, ठीक है? सो टेलीग्राम लिंक देखिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए, अभी देखो मैंने बताया तो था आपको लिंक। आई डोंट थिंक दैट वी आर एबल टू शेयर द लिंक। आप सीधा सा ये फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी लॉ, जस्ट फॉलो इट, अनअकैडमी लॉ, ठीक है? अनअकैडमी लॉ करके आप सर्च करेंगे ना विकास, अनअकैडमी लॉ करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। अनअकैडमी पे सिर्फ इतना लिखिए, अनअकैडमी टेलीग्राम पे सिर्फ इतना लिखिए अनअकैडमी लॉ, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, है ना, विद द लोगो ऑफ अनअकैडमी। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसमें मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आप, है ना? और उसके एडमिन सेक्शन में आप मेरी फोटो देख पाएंगे, यू विल बी एबल टू सी माय फोटो, कैप्टन GK_JJ सर। तो वहां पे आप मेरे को फॉलो कर लेना, वहां से भी आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आर वी क्लियर? डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VIDISH10 VIDISH10। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं दोपहर को, और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू क्लास, जय हिंद।